So, Good morning, sir. good morning, beta. So, let's start our today's class. Okay, students. So, we were on unit number four, which will be our unit number one, and that was related to web application and security. And the very first session that we need to cover under that is working with accessibility options. All right. So we have already started this working with accessibility options session, and I have explained you some basic things about this, like what is computer accessibility. So it was already explained that it is the user friendliness of a computer system for all. For all means what? Means regardless of their disability, everybody can use the computer the way we use. This technique is also known as assistive technology. So this was already explained to you. Other than this, I have also explained you the various types of impairments that a person can have. Let us move to the next page and see which all impairments they have given us. So these are the names of all the impairments which are given to us. All right. So the first impairment which is given is कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स मैंने बोला था आपको कि जिसकी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज़ थोड़ी कम होती है उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. द सेकंड वन वाज विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट फ्रॉम द नेम itself it is very clear that the person who is having some less sense of sight will be having the visual impairment. The third one was hearing impairment, and the next one was motor or dexterity impairment. What all things comes under the motor or dexterity impairments? So you can see over here there are various terms which are given to us that explains the motor and dexterity impairment, which is paralysis, cerebral palsy, uh, carpal tunnel syndrome और रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी. तो ये कुछ इन्होंने कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट्स के नाम बताए हैं जो कि मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट के अंदर आती हैं. It was already explained to you that how we can open the accessibility option. So accessibility option can be accessed from the start menu. Under that we have to go into the control panel, and over there you have to click on the accessibility options, and you will see a new window on your screen, using which we can deal with the accessibility options. So this is the पर window. हाँ जी. सर इसमें तो विंडोज एक्सपी लिखा है और अब तो विंडोज एक्सपी नहीं चलती है ना. हाँ तो क्या हुआ बेटा, ऑप्शन रिमेन्स द सेम. विंडोज 10 में भी कंट्रोल पैनल सर होता है, विंडोज 10 में भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है ना. सो इट डजेंट यस मैटर कि यहाँ पर विंडोज एक्सपी लिखा हुआ है. ये बुक जब पब्लिश हुई थी तब शायद इन्होंने विंडोज एक्सपी को बेस लेकर बनाया हुआ है, बट नथिंग टू यस वरी. द ऑप्शन रिमेन्स द सेम इन द कंट्रोल पैनल. इट इज़ नॉट चेंज्ड. देखो उसमें यूज़र फ्रेंडलीनेस इंक्रीज हुई है विंडोज़ एक्सपी और 10 में कंपेयर करें तो बहुत से फीचर्स भी ऐड हुए हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी ब्रीचेस को रिकवर किया गया है, बट दीज फीचर्स रिमेन द सेम. कंट्रोल पैनल तो जो विंडोज़ एक्सपी में कहते होता था वही विंडोज़ 10 में भी होता है. तो यहाँ पर इस चीज़ में कुछ चेंज नहीं है. ये चीज़ जो विंडोज़ एक्सपी में होती थी वही विंडोज़ 10 में भी होती है. इसलिए हम इसको विंडोज़ एक्सपी में भी देखेंगे तो भी ऐसे ही दिखेगा, और विंडोज़ 10 में भी देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा. All right. So students, this is the accessibility option that will be open on our screen. इसको बोलते हैं एक नया dialog box open हुआ है. So in this dialog box you can see various tabs which are present over here. Which are those tabs? So the very first tab is the keyboard tab. ठीक है, मतलब कीबोर्ड रिलेटेड किसी को इम्पेयरमेंट है तो वो इस टैब का यूज़ कर सकता है. सेकेंड टैब इज साउंड टैब. द थर्ड टैब इज द डिस्प्ले टैब. The fourth tab is the mouse tab, and the fifth tab is the general tab. So these are the five tabs which are given to us, using which we can control the various impairments of a particular person. ठीक. तो हम क्या करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी studying in detail each and every type of impairment. Means first we will be dealing with the keyboard impairment, so we will be going into these three options which are given to us. After this we will be moving to the sound option. After the sound we will be getting into display, mouse and general. ठीक है. So we will today in today's class, if I tell you, so we will be dealing with the keyboard options only, because this will only take us around 25 to 30 minutes for
अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द कीबोर्ड टैब. इनको क्या बोलते हैं? इनको टैब्स बोलते हैं. ये जो यहाँ पर होता है ना, ये टैब्स है. ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, ये तो इनको टैब्स बोला जाता है. मीन्स इन पे क्लिक करेंगे तो नया विंडो विल बी ओपन एंड वी विल बी looking into the options which are present in that. So let us now start with the keyboard tab. ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि भैया इसको ऑन कैसे करते हैं. तो इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, ये तो हमको पता चल गया. अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टिकी कीबोर्ड टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं. तो कीबोर्ड टैब में जो क्या हुआ बेटा? व्हाट इज़ दिस एक्सेसिबिलिटी? क्या हुआ एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या? मैंने बताया था ना, एक्सेसिबिलिटी किसी चीज़ को यूज़ करने में जो आसानी होती है उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, है ना. तो कंप्यूटर भी हमको कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम इम्पेयर्ड पर्सनस की हेल्प कर सकते हैं, और वो इम्पेयर्ड पर्सनस भी कंप्यूटर्स को वैसे यूज़ कर सकते हैं द वे वी यूज़, है ना. तो उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी. ठीक है खुशी, आगे बढ़ते हैं. कीबोर्ड टैब की बात कर रहे हैं हम. अब कीबोर्ड टैब में पहला ऑप्शन जो हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम एक बार और देखते हैं. कीबोर्ड टैब में जो पहला ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो है स्टिकी कीज. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो हम देखेंगे वो होगा स्टिकी कीज. आफ्टर दैट फिल्टर कीज एंड लेटर वॉज टॉगल कीज. तो ये तीन कीज को हमको आज की क्लास में समझना है. स्टिकी कीज, फिल्टर कीज और टॉगल कीज. So let us get into the details of these and let us understand what sticky keys is. So let us see the definition which is given to us over here. Sticky keys is an accessibility feature that can help computer users with physical disability. डेफिनेटली कीबोर्ड से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी से डील करता होगा ये ऑप्शन, क्योंकि कीबोर्ड यूज़ करने वाली बात है तो कोई ऐसा पर्सन जो मोटर या डेक्सटरिटी इम्पेयरमेंट फेस कर रहा है उसके लिए कीबोर्ड को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. सो दीज आर द ऑप्शंस विच विल बी हेल्पिंग द पर्सनस विद द फिजिकल डिसेबिलिटीज़. तो ये स्टिकी कीज़ का ऑप्शन होता है, ये एक एसेसिबिलिटी फीचर होता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए यूज़ में आता है. अब क्या यूज़ में आता है तो चलो वो देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज. हाँ ठीक है, ये तो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं ये फीचर का. कभी कभी हमको भी ज़रूरत पड़ सकती है. कैसे पड़ सकती है तो चलिए आगे देखते हैं. अब ये तो हुई पहली बात कि स्टिकी कीज़ क्या है, एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि फिजिकल डिसेबल्ड पर्सनस के लिए बनाया गया है. इफ़ एडिंग समथिंग मोर इन टू दिट्स डेफिनेशन, सो व्हाट वी कैन ऐड, सो वी कैन ऐड स्टिकी कीज़ allows user to press and release the modifier keys such as control, alter, add, shift and windows की. कीबोर्ड में कुछ मॉडिफायर कीज होती है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. कुछ मॉडिफायर कीज होती हैं जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर और विंडोज़ की. अब मैंने बोला किसी को कि भैया आप कंट्रोल पी प्रेस करो. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व कंट्रोल प्लस पी, सो कंट्रोल इज ऑन द वेरी लेफ्ट and P is on the very right side of the keyboard. So if a person who is facing motor or dexterity impairment, so he may face some difficulty in pressing both the two keys simultaneously, है ना. सेम टाइम पर दोनों कीज़ को प्रेस करने पर हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम तो कर लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है. बट द पर्सन हु इज़ फेसिंग द मोटर और डेक्सटरिटी इम्पेयरमेंट मे फेस सम डिफिकल्टी इन प्रेसिंग बोथ द कीज एट द सेम टाइम. तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन बनाया गया है और इस ऑप्शन को बोला जाता है स्टिकी कीज़. क्या करेगा ये? तो जब कभी हम ये स्टिकी कीज़ को प्रेस करेंगे, स्टिकी कीज़ मतलब कौन कौन सी स्टिकी कीज़, तो चलो एक बार उसकी बात करते हैं. तो स्टिकी कीज़ होती है, सबसे पहले होती है शिफ्ट, फिर होती है कंट्रोल, फिर होती है ऑल्टर और लास्ट वन होती है विंडोज़ की जो स्पेस बार के बाजू में होती है ना. तो अब जब कभी हम इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस पी अगर मेरे को दबाना है, ठीक है, अगर मुझे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है तो मुझे कंट्रोल को प्रेस करना रख पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम आई नीड टू प्रेस द पी की. बट अगर मैं मेरे कीबोर्ड पे या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाकर मैं स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को एनेबल कर दूंगा, तो स्टिकी का मतलब ही होता है किसी चीज़ का चिपक जाना, है ना, टू स्टिक इनटू समथिंग. तो स्टिकी कीज़ का काम क्या होता है कि जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, ठीक है, मैंने जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया
और अब मैं कंट्रोल को प्रेस करके रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो भी कंट्रोल प्रेस्ड ही रहेगा। अब कंट्रोल एक बार मैंने प्रेस कर दिया, कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ दिया, नाउ आई कैन सिंपली क्लिक ऑन अ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल की विच इज पी। मुझे अब दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस नहीं करना है, मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रिलीज कर दिया, अब मैंने पी को दबाया, देन ऑल्सो प्रिंट ऑप्शन विल गेट एनेबल्ड, है ना। तो यहाँ पर ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो लोग एक साथ पर दो कीज का प्रेस करने का जो फिंगर्स पे स्ट्रेन आता है वो स्ट्रेन नहीं बियर कर सकते, तो वो लोग इस एक्सेसिबिलिटी फीचर का इस्तेमाल करके दोनों कीज को अलग अलग टाइम पर प्रेस करके भी अपना काम जो भी उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे स्टिकी कीज मतलब क्या है। स्टिकी कीज में आपको कंट्रोल को प्रेस कर नहीं रखना है, शिफ्ट को प्रेस करके नहीं रखना है, ऑल्टर को प्रेस करके नहीं रखना है, इवन विंडोज को भी प्रेस करके नहीं रखना है। आप एक बार क्लिक कर दो और फिंगर्स को रिलीज कर दो, वो की प्रेस्ड ही रहेगी जब तक आप कोई दूसरी की प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, मतलब जब तक आप कोई दूसरी की प्रेस नहीं कर दोगे तब तक वो की एक्टिव रहने वाली है। जैसे कि आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया, आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस किया और कंट्रोल के बाद आपने एक्स प्रेस कर दिया तो वो कट हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस किया उसके बाद जेड प्रेस किया तो वो अंडू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक की को प्रेस करके रिलीज़ कर सकते हैं और अगली की को प्रेस करेंगे तो भी आपकी जो ऑपरेशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टिकी कीज़। कैसे एक्टिवेट करेंगे स्टिकी कीज़ को, तो ये रहा हमारा विंडो, इस विंडो में जाने के बाद हमें यहाँ पर टिक लगाना होता है और ये अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना होता है। वंस वी डू दिस तो हमारा स्टिकी कीज़ का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। हम लोग भी चाहें तो हम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी अगर हम लोगों को भी लगता है कि बार बार हमें शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को एनेबल कर लें और यूज़ कर लें। सो दिस इज़ स्टिकी कीज़। ठीक है, आफ्टर दिस दे हैव गिवन अस वन एग्जाम्पल एज यू कैन सी ओवर हियर, just a minute, this one. So this is one example which is given to us. सॉरी, सो यू हैव टू गेट इन टू दिस एग्जाम्पल, आप लोगों को इसको पढ़ना है और समझना है कि ये एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है और क्या आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज दिस इज सम एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू अस कि नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड पे ऐसा टाइप करो, ये करो, वो करो। तो एवरीथिंग रिटन ओवर हियर हैज़ टू बी अंडरस्टूड एंड रेड बाय यू, और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है उसकी तरफ। एंड द नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन विच इज़ प्रोवाइडेड टू अस इज़ द फिल्टर कीज। फिल्टर कीज की तरफ आगे बढ़ता है। नाम कैसा लग रहा है, फिल्टर। फिल्टर करना मतलब किसी चीज़ को छानना, किसी चीज़ को साफ करना, किसी चीज़ को छांटना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फिल्टर। तो जैसे कि अगर हम किसी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन की बात करें जो मोटर या डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट को फेस कर रहा है और मैंने उसको बोला कि यू हैव टू टाइप हेलो, ठीक है, इफ आई टेल हिम टू टाइप हेलो एंड इफ ही इज हैविंग सम मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट एंड एज सून एज ही क्लिक्स ऑन एच, तो एच पे क्लिक करते से वो फिंगर तो रख दी, वो फिंगर को रिलीज नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कीबोर्ड पे बार 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 ऐसा एच 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 टाइप होता चला गया। ठीक है, तो ये तो गलत है, उनको क्या टाइप करना था, सिंगल एच टाइप करना था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, तो एक्चुअल में इतनी बार एच टाइप हो गया। सो दिस शुड नॉट हैव बीन हैपेंड, क्योंकि वो पर्सन थोड़े से इम्पेयर्ड हैं एंड ड्यू टू देयर इम्पेयरमेंट वो लोग की पे से इतने जल्दी फिंगर्स रिलीज नहीं कर पा रहे। तो फिंगर्स रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत ये हो रही है कि वो एच 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 बार बार प्रेस होते जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ देर इज़ एन ऑप्शन कि जिससे कि हम ऐसी चीज़ को कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन एनेबल कर दें कि जिससे कि अगर सामने वाला गलती से फिंगर रिलीज नहीं भी कर पा रहा है तो भी वर्ड जो है रिपीटेटिव वे में टाइप हो रहा था वो रिपीटेटिव वे में टाइप ना हो। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको बोला जाता है फिल्टर कीज। ठीक है, फिल्टर कीज क्या करेगी, सो फिल्टर कीज विल फिल्टर
बार बार रिपीटेटिव कीज़ को टाइप होने से रोकेगी। अगर किसी को एल 2 बार दबाना है तो वो एक बार एल पे प्रेस करेगा, फिंगर रिलीज कर देगा, फिर से एल को प्रेस करेगा और रिलीज कर देगा, बात खत्म, है ना। तो अगर उसको रिपीट भी करना है किसी कैरेक्टर को तो वो रिपीट कर सकता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा की को उतनी बार। बट इस चीज़ से तो बच जाएगा ना वो, ये जो उसको बार बार एक की को प्रेस करने पर इतनी सारी कीज़ जो प्रेस हो रही थी उससे तो वो एटलीस्ट बच ही जाएगा। सो फॉर दैट feature there is an option which is given to us which is the filter keys। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो अब अपन इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि फिल्टर की होता क्या है। फिल्टर की इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड कीवर्ड्स, है ना। जो भी हम ब्रीफ या जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स को टाइप कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट टाइम में हमने किसी की को दबा दिया और बार रिपीट हो रही है अगर वो की स्ट्रोक, तो उस की स्ट्रोक को रिपीट होने से हम रोक सकते हैं। ये किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फीचर? आगे बढ़। हाँ, तो ये फीचर किन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है? तो ये फीचर उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो हैंड ट्रेमर्स को फेस करते हैं, हाथों में शेकीनेस या हाथों में कुछ प्रॉब्लम्स हो, प्रॉपरली वो हैंड्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनको हैंड ट्रेमर्स हैं, हाथ कांपते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं ना अपन, तो वो लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो चलो और डेफिनेशन में और क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। It is an accessibility feature that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes, making typing easier for people with hand tremors। अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो वही एनेबल करना पड़ेगा हमको, फिल्टर कीज पे चेक करना पड़ेगा, अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये फिल्टर कीज का ऑप्शन एनेबल होगा। आफ्टर दिस उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल बताया हुआ है यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है इसमें और क्या हमको ये चीज़ क्लियर है या नहीं। ऑलराइट, तीसरा जो ऑप्शन है वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, जिसको बोलते हैं टॉगल कीज। ठीक है, अब टॉगल कीज क्या होती है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। टॉगल कीज इज अनदर एग्जांपल, अनदर फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, एमएस विंडोज़ का एक और फीचर है। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब देखो, अभी जो दोनों इम्पेयरमेंट्स देखे, अभी जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने देखे, है ना, स्टिकी कीज़ और फिल्टर कीज, ये दोनों कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, द पर्सन हु आर फेसिंग हैविंग सम इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू मोटर और डेक्सटेरिटी, तो वो उनके लिए थे। बट ये वाला जो ऑप्शन है ना टॉगल कीज, ये ऑप्शन फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए नहीं है, जबकि ये किन के लिए है, ये विजन और कॉग्निटिव इम्पेयर्ड डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। मतलब जिनकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो या जिनकी देखने की जो विजन की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो, तो टॉगल कीज उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। कैसे हो जाता है बेनिफिशियल? तो चलो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हेन टॉगल कीज आर टर्न्ड ऑन, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन टॉगल कीज ऑन टर्न्ड ऑन कंप्यूटर एमिट साउंड क्यूज व्हेन द लॉकिंग कीज लाइक कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक आर प्रेस्ड। अच्छा, तो ये क्या करेगा, जैसे हम कोई ब्लाइंड पर्सन है, कीबोर्ड पे देखे बिना लिख रहा है, उसको ए प्रेस करना था और गलती से उस पर्सन ने ए प्रेस करने की जगह कैप्स लॉक प्रेस कर दिया, क्योंकि वो ठीक बिसाइड टू ए जो की होती है वो कैप्स लॉक होती है। तो उसने ए प्रेस करना था बट इंस्टेड ऑफ ए क्या हुआ, कैप्स लॉक प्रेस हो गया। तो कैप्स लॉक प्रेस होने से क्या होगा, नाउ एवरीथिंग विल बी गेटिंग टाइप्ड इन कैपिटल्स। हो तो गई गलती, अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि उसने गलती से कोई दूसरी की प्रेस कर दी है या कोई लॉकिंग की प्रेस कर दी है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है टॉगल की। टॉगल की करता क्या है, तो टॉगल की जो भी आपके पास जो ये लॉकिंग की होती हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक, नम लॉक, आप इन ये जो तीन आपकी लॉकिंग कीज़ हैं, आप जब कभी इन लॉकिंग कीज़ को प्रेस करोगे तो इन लॉकिंग कीज़ को प्रेस करने पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब आप इनको ऑन करोगे, जस्ट अ मिनट,
जब कभी कैप्स लॉक या ये सारी चीज़ें कैप्स लॉक, नंबर लॉक या स्क्रोल लॉक जब कभी ऑन होगा तो एक लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब ये ऑफ होगा तो एक शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि अभी कैप्स लॉक, नंबर लॉक या स्क्रोल लॉक ऑन हुआ है, और अभी जब शॉर्ट बीप आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रोल लॉक अब ऑफ हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जो लोग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट फेस कर रहे हैं, या तो फिर जिनके विजन में कुछ इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब भी हम कभी गलती से कोई दूसरी की प्रेस कर देते हैं, मतलब कोई लॉकिंग की प्रेस कर देता है ना, जैसे कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, सो एट दैट टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होगा। जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो एक लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा, जब कैप्स लॉक ऑफ होगा तो एक शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अभी कैप्स लॉक ऑन हुआ है और अभी कैप्स लॉक ऑफ हुआ है। सो दिस इज़ एन ऑप्शन ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर अंडर द कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब में 3 तरीके के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। पहला जो हमको दिया गया है वो है स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ को हमने देख लिया, आई बिलीव आप लोग रिमाइंड पूरा रिमाइंड कर पा रहे होंगे स्टिकी कीज़ में हमने क्या देखा था। स्टिकी कीज़ के बाद हमने जो देखा था वो था फ़िल्टर कीज़। फ़िल्टर कीज़ आई बिलीव आप लोग मन में सोच पा रहे होगे फ़िल्टर कीज़ में हमने क्या देखा था, रिपीटेटिव कीज़ वाला। और तीसरा जो है ये है हमारा टॉगल कीज़, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ही थी जो हमको आज की क्लास में कवर करनी थी। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को अभी के लिए स्किप किया था जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप पढ़ोगे। सो दिस इज़ द थिंग, ये वाला जो पार्ट है ये आपको पढ़ना है और समझना है। आफ्टर दिस हाँ, उसके बाद ऊपर ही दिया हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको पढ़ना है और समझना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ इन द ग्रुप राइट नाउ। आप लोग ग्रुप में जाकर वो पीडीएफ को ओपन करें। वी स्टिल हैव अराउंड 10 to 12 minutes with us. So in this 10 to 12 minutes, you just go through that PDF and see whether the things are clear to you or not. और अगर नहीं है तो उसी समय आप इंस्टेंटली ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा जूम मीटिंग है अभी जो हमने कंडक्ट किया, ये आई विल बी अपलोडिंग द लिंक ऑफ दिस जूम मीटिंग टू यू। तो आप यूट्यूब पर जाकर ये पूरा जूम मीटिंग भी फिर से देख सकते हैं अगर आपको लगे कि हमसे कोई टॉपिक मिस हो गया या साउंड नहीं आ रहा था या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या वट एवर इट मे बी एनी प्रॉब्लम जो भी हो आपको। तो ऐसे समय पर अगर कुछ हुआ हो तो आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑल्सो। तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर ये पूरी की पूरी जूम मीटिंग को वहाँ पर देख पाएंगे, और आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। So students, I am sending you the link in the group as soon as we end this meeting. All right. So you just go through that PDF and understand, and please ask me the doubts if you have some. All right. So students, you can end the meeting from here right now and move to the group on WhatsApp. All right.